Welcome back to my channel RC Classes of Chemistry. Today we are going to do another lecture of the solid state, that is the defect in crystal. We have done the packing efficiency, we have done the density of crystal. Two main topic we have done. You practice at that home by doing yourself home. Now we are going to do another important topic, defect in crystal. You know guys, crystal are long range order, and what we are using that they are crystalline in nature. Crystalline in nature, it means there's no hope of any kind of defect, but defect can come in even crystal also by heating or by some other means. So number one, so after that they are having the long range order, there is also a defect. We have two type of defect in our crystals. That one is the line defect, which is not in our syllabus. It means whenever there is irregularities throughout the line, means of that there is a disturbance in arrangement of atom throughout the lines, that is called line defect. This is not in our syllabus. And defect I already defined you. There is a disturbance or irregularities, disturbance in arrangement of atom, Now the second type of defect, one is line defect, another one is what? Another one is the point defect. That is in our syllabus. Point defect, when there is a disturbance in the arrangement of single atom throughout the line. Suppose that a single atom is missing, which I showing there by this gap. So defect will come, that is called point defect. Now point defect is in our syllabus and we must have to read it carefully. The point defect is again of three types. Number one is stoichiometric defect. Number two is non-stoichiometric defect. And number three is what? That is the impurity defect. That is what? Impurity defect. Today we will study guys only the stoichiometric defect. और केमिस्ट्री में ध्यान रखना, जो वर्ड बोला जाएगा वो वैसा नहीं होगा. स्टोकियो तो सारे बच्चे जानते होंगे. स्टोकियो मीन्स एलिमेंट एंड मीजरी मीन्स मीटर मीन्स मीजरी, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट. लिमिटिंग एजेंट में, मोल कंसेप्ट में, केमिकल कैनेटिक्स में हमने स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आपको बहुत बार समझाया. तो जब वो बोले कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, तो वहां पर स्टोइकियोमेट्री ऑफ कैटायन एंड एनायन या उस क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी. स्टोइकियोमेट्री विल नेवर डिस्टर्ब. पहला पॉइंट ये ध्यान रखना. अब वहां पे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी. फिर वो बोलता है कि ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्यों है. ये जनरली जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वहां पे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पैदा होते हैं. एक जनरल ट्रेंड बताया. फिर जो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, ये हीट करने से आ रहे हैं, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं. ये छोटे छोटे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. दिस डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट. इंट्रिंसिक डिफेक्ट. नाम बच्चों याद रखना, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है चूज करके. ऐसे 3 नंबर का डेंसिटी का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का डिफेक्ट में से, 2 नंबर की डेंसिटी, 2 में से, इसमें से 2, या पैकिंग एफिशिएंसी 2 इसमें से. अब बेटा हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्बेंस नहीं होती है. ये हीट करने से जनरली पैदा होते हैं. इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, इन्हें इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं. अब स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट एक्चुअल में 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम इसे
दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो अब हम आज स्टडी करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट चार प्रकार का होता है। फाइनली वी विल summarize them in two kind of only. Listen it carefully. Stoichiometry defect is observed in ionic as well as non-ionic crystal. It is of two type. Stoichiometry defect. Number one is called vacancy defect. Vacancy defect. And on other side it is known as interstitial defect. Interstitial defect. ये दोनों डिफेक्ट ही बच्चे नॉन आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व किए गए। नॉन आयनिक, ये भी नॉन आयनिक में ढूंढा गया, नॉन आयनिक। अब होता क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट में से जैसे सपोज कर लो ये एक क्रिस्टल है, उसके अंदर ये कुछ एटम, पॉइंट, यूनिट और जो मर्जी आप समझ लो ये अरेंज कर दिए। फाइनली इसमें से एक एस्केप हो जाएगा। ये हैविंग 9 हियर, सो वी आर हैविंग 8। तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। कैटायन और एनायन मिलके बनाते हैं, तो कोई एटॉम या एनायन मिसिंग हो जाएगा इसमें से। तो वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक में होता है। इसमें एक एटम चला गया तो इसका जो मेन पॉइंट है कि इसके अंदर डेंसिटी डिक्रीज हो गई। डेंसिटी डिक्रीज, टेक केयर, ये पॉइंट बहुत पूछा गया, डेंसिटी का पॉइंट भूलना मत। अब अगर हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करते हैं तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर बाहर से कोई एटम इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाता है। जैसे सपोज करो ये 4 का एक क्रिस्टल है और इसके अंदर बाहर से कोई एक एटम आ गया, बाहर से एक एटम इसके अंदर आ गया, ये एक पड़ा है। अब इसके अंदर एक एटम आ गया। आप एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम बने हुए हैं उनको अच्छे से देख के जाना। कई बार डायग्राम उठा के बोर्ड में पेस्ट कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज। इसके अंदर एक एटम और आ गया, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड में। इसमें देखो बेटा डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसमें डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इसमें तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ध्यान रखना। अब शॉर्टकी डिफेक्ट के 2 मेन डिफेक्ट और हैं जो कि कहलाते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी इन्हें एक बार जरा रब कर रहा हूं, मन तो कर रहा है कि यहीं लिख दूं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट टू अनदर टाइप। आप जब लिखो तो इनको उनके नीचे लिख लेना। ये 2 डिफेक्ट हो गए, इसमें क्रिस्टल और डेंसिटी, और इनके क्या क्या नाम है ध्यान रखना। अब बच्चे 2 जो मेन है ना वो है बेटा, वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड अनदर वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। आइए इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं ये क्या चीज है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्बेंस नहीं होती है। सपोज कर लो ये एक क्रिस्टल है, इसके अंदर कैटायन, एनायन, कैटायन, ये मैंने 6 ले लिए बेटा, कुछ भी कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन। अब इसमें कैटायन और एनायन का रेशो क्या है बेटा, 3/3। तो इसकी स्टोइकियोमेट्री इसकी 1/1 है। अब इसमें से एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग आ जाएगा। मिसिंग आ जाएगा तो फिर कैसे आएगा आपके पास, वो ऐसे आएगा। अब बचे कितने, जब एक एक चला गया तो वी हैव लेफ्ट 2 तो 2 कैटायन और 2 एनायन बच गए।
पॉजिटिव नेगेटिव एक समझा रहा हूं, आप उसमें से बुक में से और अच्छे से पिक्चर देख सकते हो। अब कैटायन और एनायन कितने रह गए 2/2, तो स्टोइकियोमेट्री तो 1/1 रही इसमें भी और 1/1 रही इसमें भी। इज क्लियर? अब आपने इसके एक और पॉइंट देखने, ये जो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट नंबर 1 यहां से क्लियर हो गया कि क्रिस्टल में से कैटायन और एनायन मिस हो गए, तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई। जो मेन पॉइंट है डेंसिटी डिक्रीज, बहुत बार सीबीएसई में 1 नंबर का पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट को तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल मत छोड़ना कि डेंसिटी डिक्रीज हो गई। नंबर 2, ये वाला डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑब्जर्व किया गया। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें कैटायन और एनायन का साइज इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन का साइज, कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल। और इसके जो एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल हैं बेटे सोडियम क्लोराइड NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। टेक केयर, शॉर्टकी डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्री नॉट डिस्टर्ब, डेंसिटी डिक्रीज, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई एंड कैटायन एंड एनायन साइज इज इक्वल। गॉट इट? वन मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इज व्हाट AGBR। इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूं। अब हम लेते हैं बच्चे फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें सपोज कर लो कि कैटायन और एनायन पड़े हैं बहुत सारे, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। इसी के अंदर से ही एक क्रिस्टल में से कोई एनायन या कोई कैटायन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह आ जाता है। ये मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि किसी +2 वाले बच्चे के नंबर कम आ जाए तो घर में वो अपना कमरा छोड़ के ना वो लास्ट वाले कमरे में बैठ जाता है डर के। ओके, तो वो बच्चा घर छोड़ के भी नहीं जा सकता +2 वाला, क्योंकि +2 वाले बच्चे के घर छोड़ नहीं सकता, कमा कुछ सकता नहीं है, इसीलिए वो घर में ही घूमता रहता है। घर भी नहीं छोड़ सकता और घर के अंदर रहने में भी प्रॉब्लम है। तो मीन्स ऑफ दैट कि कैटायन उसके अंदर ही घूमेगा, तो इसमें जो है ना डेंसिटी में चेंज नहीं आता। डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल नॉट चेंज। पॉइंट टू बी नोटेड, शॉर्टकी के अंदर डेंसिटी कम हो रही है, वैकेंसी के अंदर डेंसिटी कम हो रही थी, और जो इंटरस्टिशियल किया था उसमें डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। एनसीईआरटी में बकायदा मेंशन है, पढ़ के जाना। अब उसके बाद इसी के 2-3 पॉइंट और हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये डेंसिटी तो हो गई, इसमें रिमेन अनचेंज, डेंसिटी की बात तो हो गई हमारी, डेंसिटी अनअफेक्टेड, नो चेंज। नंबर 2, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो आएगा। एक बड़ी बात, उसमें कैटायन और एनायन का साइज बराबर था, इसमें कैटायन का साइज छोटा है, कैटायन आर स्मॉलर, कैटायन आर स्मॉलर। बस 2-3 मिनट और दूंगा बेटे। कैटायन आर स्मॉलर इन साइज। अब इसके एग्जाम्पल याद भी रखने पड़ेंगे, ट्रिक भी बनानी पड़ेगी। वाइफ अपने हस्बैंड को क्या बुलाती है? वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है एजी एजी एजी। तो आप भी 3 बार जस्ट फॉर फन है और एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। वो कहती है एजी, फिर दोबारा बोलती है एजी, थर्ड टाइम एजी। अगर 3 बार में एजी ना सुने तो जो रिस्पेक्टेड वाइफ है वो माता का रूप धर लेती है, फिर वो सीबीआई बन जाती है। इधर देखो, सीबीआई बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेरे 3 एग्जाम्पल तैयार हो गए। देखो इधर AgCl, AgBr, AgI, बोलोगे नहीं कभी। अब इसमें देखो तो कैटायन का साइज छोटा है, एक मेरे ख्याल इसमें जिंक सल्फाइड भी आता है, वो सारे के सारे कैटायन के साइज छोटे हैं। और उसके बाद 2 क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। इसमें AgBr के ऊपर मैं बात कर रहा था कि AgBr
एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों टाइप, शॉर्ट की एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड, इन विच डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन सिल्वर ब्रोमाइड। यहां से क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन हो रहा है लास्ट, हाफ मिनट या 1 मिनट फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर है। इसमें देखो बेटा, कैटायन के साइज छोटे हैं, तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। मैं फिर सीबीएसई में आया हुआ भी है कि वाई अल्कली मेटल हैलाइड, वाई, यही लिख देता हूं क्वेश्चन कि वाई अल्कली मेटल हैलाइड, वाई अल्कली मेटल हैलाइड, अल्कली मेटल हैलाइड do not show Frankel defect, do not show Frankel defect। तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि अल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है तो कैटायन साइज में बड़े हैं, बिकॉज ऑफ दैट कैटायन आर ग्रेटर इन साइज, द साइज ऑफ कैटायन इज बिगर। इसका आंसर आ जाएगा कि अल्कली मेटल में, जो अल्कली मेटल है, जो कैटायन है, देयर साइज इज ग्रेटर, साइज इज ग्रेटर, दे विल नॉट फिट इन द vacant site of the anion। So this is, my dear, stoichiometry defect. There are 4 types, and out of them Schottky and Frankel defect are important. I hope so that you got understand। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बच्चे प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट, योर ब्लेसिंग, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो बाय वन अनदर इम्पैक्ट, दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। हाउ इज द जोश, कल बताना बेटे। टुमारो वी विल मीट अगेन, बाय बाय।